Hello everyone, I welcome you all here. Hope you are fine and doing well for the mains preparation. And in the morning's video, we have seen some 5 to 6 mark sheet in which the scores of essay paper especially we have seen. So this is the second video of that, and in which I will present the analysis part which I have analyzed for myself. ठीक है, तो will share with you all. So इसके पहले let's consider what is good marks or low marks or what kind of marks in a essay paper if we get that. ठीक है, if someone is getting less than 100, then it will be considered as low marks because essay paper is scoring, one can get plus 200 as well. ठीक है, in 100 and 150 marks in between, then it is considered good. Okay, this is enough. And if someone gets 150 to 200, it will be considered according to me excellent because it is not an easy task to get 150 plus marks. ठीक है, काफ़ी कुछ efforts लगते हैं. But if someone is getting 200 plus marks, this means this is a great achievement. मतलब ग्रेट हो इंसान भाई आप, सीरियसली 200 प्लस लाना. मैं अभी तक इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि इतना कैसे आ गया. मतलब आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बट स्टिल कि मैं कैसे ला सकती हूँ. मैं अभी तक वही सोच रही थी ये वीडियो बनाने तक. इनफैक्ट आके पता नहीं कब तक सोचते रहूँगी. खैर डिस्कस करते हैं. So in this video we will discuss what it takes to what we can do to take the journey from 99 to 236. 99 उस जितने भी टॉपर्स की copies we have seen ना, 99 was the lowest marks and 236 was the highest. So what it takes to get the journey started from 99 to 236, ये इसको मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगा कि हाँ ये वर्क कर सकता है, we will discuss it. ठीक है. So the first thing is adequate preparation is needed with right to essay paper. essay paper को generally we ignore, like GS1 में इतना कुछ हो गया, we have read a lot, have collected facts and all, everything is well prepared, so essay तो लिख ही लेंगे, हो जाएगा. इस essay के लिए extra time लेने की क्या ज़रूरत है? This is the normal mindset people have, including me sometimes. So we need to get out of this mindset and allocate adequate time in the preparation for essay paper. Like if you are not able to give it in a daily basis, you can allot a day or two in weekly basis or twice a week, kind of this way. According to you, you can allot. In this allotment, what one can do is to collect some facts, especially with regard to essay and introduction, prepare introduction, conclusion kind of things. This can be written. ठीक है, this is kind of adequate preparation. Then enough writing practices. We have a टिपिकल माइंडसेट ना कि अरे सब कुछ तो पता है, एग्ज़ाम में जाके लिख ही लेना है, और उसमें तो टाइम भी बहुत होता है क्योंकि 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने, तो हो जाएगा. ऐसा वाला माइंडसेट जो है ना, ऐसा काम नहीं करता. बिकॉज ऐसे राइटिंग रिक्वायर्स सम सेट ऑफ स्किलफुल नॉलेज प्लस राइटिंग स्किल्स, सर्टेन लेवल ऑफ राइटिंग स्किल्स. दिस इज़ नॉट अ GS पेपर. We need to understand the structure of essay. The third point is that the proper structure. दोनों को combine करके आई एम टेलिंग यू कि proper structure होता है एक essay का, जिसमें कि आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखा है, बीच में बॉडी में पॉइंट वाइज आप ऐसे लिख लिए, ऐसा नहीं हो सकता. You have to write it a proper structure, like paragraph wise, in which we have to show the flow in our essay. That's way and a good essay it can be considered this way. और ये कैसे सीखा जा सकता है? Through only practice. এই কারণে আমাক practice কৰিব লাগে actually. If you are not able to if you are not a master, and no one is master, so everyone should practice. This is what I want to say for myself as well. फिर फॉलोइंग प्रॉपर स्ट्रक्चर कि उसकी इसके लिए आप टॉपर्स आंसर देख सकते हो कि वो कैसे लिखते थे, एंड फ्रॉम देयर वन कैन लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर आर essay. Fourth point is PYQ analysis. We do PYQ analysis for every GS paper, but forgot to do that for essay. So essay के लिए भी ज़रूरी है, because what happens ना, क्वेश्चंस या फिर टॉपिक रिपीट नहीं होते हैं, बट उसका थीम रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल फिलोसॉफिकल essay का देखना, कोट्स मे बी डिफर, बट द थीम is like humanity, justice, social justice, vulnerable section, kind of things that get repeated. The mind and the soul, this kind of things get repeated. वैसे ही थीम होता है कि अगर विमेन पे आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, लाइक एजुकेशन हो सकता है विमेन का, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यहाँ पे क्रक्स क्या है? विमेन ना. तो दिस थिंग्स वन नीड टू अंडरस्टैंड. ओके,
Next is what extra one can do is the some nudge effect. Nudge effect is a very complex thing, but the simple term में आप ये समझ सकते हो कि कैसे आप किसी नज इफेक्ट मतलब बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। तो हमें यहाँ पे नज इफेक्ट किसके ऊपर डालना है? एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर के ऊपर इन द सेंस कि हमें उनके बिहेवियर को चेंज करके उनसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। इट्स काइंड ऑफ फनी, बट जो है वो है। और मार्क्स ज़्यादा लेने हैं, कैसे ले पाएंगे, मतलब क्या करके, सॉरी, दिस इज एग्जाम्पल वी कैन राइट। हाँ, कैसे बोलते हैं, मार्क्स ज़्यादा लेने तो हमें कुछ ऑफ़र भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या ऑफ़र करेंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ़र करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। अब वो एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलेंगे हमें? पर्सनालिटीज़। दिस कैन बी एनी वन, लाइक हमारे लीडर्स हो सकते हैं, रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस, सम ग्रेट पॉलिटिशियंस हु हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू आवर सोसाइटी, टू आवर कंट्री। दिस कैन बी पर्सन हो सकते हैं, और द सोशल एक्टिविस्ट हु हैव डन अ ग्रेट थिंग फॉर आवर सोसाइटी। वहाँ से हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जादव पायेंग सर। फिर और यहाँ पे पर्सनालिटीज़ में बहुत थिंग्स आ सकते हैं कि उन पर्सनालिटीज़ के थ्रू हम क्या ले सकते हैं। एक तो उन्होंने अगर पोएम लिखा हो, तो कोट्स लिखे हों, उनके कोट्स हम ले सकते हैं। स्पेलिंग क्या होता है, सॉरी, ओ यू ना, नहीं यू ओ, कोट्स। कितना गंदा कर दिया मैंने ना, वेट। उसके बाद उनके लाइव इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक गांधी जी के लाइफ इवेंट्स कितने सारे हैं, वो हो सकते हैं। प्लस उनके कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। तो पर्सनालिटी इस हिसाब से वी विल डिवाइड। अगेन कम्स मूवीज़ के एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ होते हैं। अगर बाई चांस बिहेवियरल चेंज और सोसाइटल चेंज की बात हो रही हो, तो उसमें वी कैन यूज़ ना, ये टॉयलेट एक प्रेम का था, जिसमें बिहेवियरल चेंज को कितने प्यार से ब्यूटीफुली बताया गया है। प्लस दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन यूज़। और शुभ, एक था ना आयुष्मान खुराना की मूवी, दैट शुद्ध मंगल ज़्यादा सावधान, इट्स LGBTQ कम्युनिटी को लेके था, तो दैट वन कैन बी यूज्ड। अगेन फॉर इफ समथिंग इज अबाउट सोशल जस्टिस, वी कैन यूज़ द मूवी जय भीम। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन यूज़। देन कम्स द सॉन्ग। अगर इंडिया के ऊपर कुछ बात हो रही है, इंडियन पेट्रियोटिज्म या कुछ भी बात हो रही है, तो हम बोल सकते हैं ना, या फिर इंडिया का कुछ भी, मैं भी लास्ट के कंक्लूजन में वी कैन गिव ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स मेक्स द ऐसे यूनिक। सो दिस इज़ द नच इफेक्ट, क्योंकि वो एग्जामिनर को कंपेल करेगा कि हाँ भैया देखो मैंने अच्छा से लिखा है, प्लीज़ गिव मी सम एक्स्ट्रा मार्क्स, नॉट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बट सम एक्स्ट्रा। और 2-3 मार्क्स के एक्स्ट्रा मिलना भी बहुत मैटर करता है इन द एग्जामिनेशन। अगेन देन कम्स द नज इफेक्ट का एक और पार्ट है कि जो भी टॉपिक पूछा गया है उसको वी कैन कनेक्ट विद द रिसेंट ग्लोबल लोकल whatever contemporary issues. For example, globalization, climate change, women issues, youth, democracy, human rights. There are multiple. We can plus technology, this kind of things we can, artificial intelligence, इन सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर ना, कि हर ऐसे में ये सारे पॉइंट्स को कवर करना इट्स इम्पॉसिबल, because we don't have the time as well, we don't have the the space to write. So in this way what we have to do is, थोड़े बहुत एक मतलब 2-4 पॉइंट्स भी अगर एक ऐसे में कवर होते हैं ना, दैट्स इनफ, वी कैन डू इट। ठीक है, सो दिस वॉज द एनालिसिस पार्ट विच आई मेक। अगर मेरे से कोई कुछ पॉइंट छूट गया हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लग रहा हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी हेल्प हो जाएगी और बाकियों को भी हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरी एक और ऐसे की वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था क्या करना चाहिए, कैसे लिखते हैं या क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जस्ट वॉच वंस इफ़ यू हैव नॉट वॉच, जिसमें मैंने CSL फार्मूला, पेस्टल डैश फार्मूला वगैरह बताए हुए हैं, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। So thanks for watching. Thank you. All the best.